Nowadays, there are lots of fitness trackers available in the market, and it becomes very difficult for a normal person to decide which one to buy. So in this video, I will compare two most popular fitness trackers that are Mi Band 4 and Mi Band 5. I know Mi Band 5 is still not available in the market, but you guys demanded for this video. So here is the video. So without wasting further more time guys, let's get straight into the video. First, let's start with the major changes that has been happened to Mi Band 5. Don't worry guys, we'll talk about the common things as well in both of the bands and आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर आपके पास Mi Band 4 पहले से है तो आपको अपग्रेड करना वर्थ इट रहेगा कि नहीं Mi Band 5 में. Talking about the display, Mi Band 5 is having a 1.1 inches of bigger display as compared to Mi Band 4. Here Mi Band 4 is only having 0.95 inches of screen. Now you guys will say having a little bit bigger display doesn't make any huge difference, but no guys, that's not the case over here. It makes a huge difference. The difference is directly visible on the watch face. You can consume a lot more things on the Mi Band 5 screen or Mi Band 5 watch face as compared to Mi Band 4. You can access the modes on the watch face only. You no need to go into the modes specifically for accessing it. It is quite easy in this particular watch face. Even you can get more data present on the band screen only. Like you can scroll on the screen and you will get a whole week data into it. You no need to open the Mi Fit application for getting every precise data. You can access that particular data onto the band screen only. So yeah guys, it's quite amazing in my opinion. Talking about the design and build, Mi Band 5 is having a little bit angled way design. I'm talking about the straps. And Mi Band 4 is having a flat design and the straps are in round circled way. So yeah guys, both of them look cool in design, no issues with that. Both are well built and are great in terms of build quality, no issues with that. Both of them feels premium in hand और काफ़ी मस्त लगता है यूज़ करने में. ऐसा नहीं है कि Mi Band 5 ज़्यादा स्टडी और ज़्यादा प्रीमियम फील करेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Mi Band 4 भी मस्त लगता है और Mi Band 5 भी मस्त लगता है देखने में. Talking about the modes and features, both of the bands features almost similar modes and features, but Mi Band 5 is having a little bit extra features into it. So we'll talk about the extra features that are present in Mi Band 5. The first mode is the Pi mode. Pi is basically an personal activity intelligence. It is a whole chunk of data with which the AI or intelligence of this particular band can decide how your health index lies and how much effort you are putting into your workout and daily workout activities, like daily activities. On the basis of this, it can calculate the data and show you as a number count. So इसमें क्या होता है कि आप एक वीक तक आपने कितना वर्कआउट किया, कितना फिजिकल एक्टिविटी करी आपने, तो आपको 0 से लेके 100 के बीच में इसका एक नंबर लाई करता है. 100 तो नहीं है, 100 के ऊपर भी जाता है. तो मिनिमम इंडेक्स जो है आपको 100 तक मेंटेन करना है. तो इससे कार्डियोवास्कुलर नाम का एक डिजीज़ जो होता है ना, कार्डियोवास्कुलर या फिर जो भी है प्रोनाउंस अगर गलत कर रहा हो तो वो डिजीज़ का काउज इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है अगर आप पाई को मेंटेन करते हो तो. और पाई को मेंटेन करना काफ़ी अच्छी बात है यार, आप हेल्दी फील करोगे और प्लस आप लेजीनेस काफ़ी कम है आप में, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये. इट इज़ हैविंग अ स्ट्रेस मॉनिटर इन बिल्ट इनटू इट which will help you to provide the stress level data onto your band only. The number count varies from 0 to 100 और बेसिकली इसमें क्या होता है ना, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है. तो ये आपके हार्ट रेट का फ्लैक्चुएशन को कैलकुलेट करता है, कितने टाइम इंटरवल पे आपका हार्ट रेट फ्लैक्चुएट कर रहा है और उस बेसिस पे आपको 0 से लेके 100 के बीच में एक नंबर दिखाता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर एक फेयर आइडिया आपको लग जाएगा कि आपका 40 में कर रहा है तो माइल्ड है, फिर अगर लो है या फिर हाई है तो स्ट्रेस लेवल आपका पता चल जाएगा. तो ये मेरे ओपिनियन में थोड़ा यूज़फुल है, बट ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसे यूज़ करते हो कि नहीं करते हो. इट इज़ हैविंग अ ब्रीदिंग मोड फीचर इनटू इट. इन दिस पर्टिकुलर फीचर यू कैन सेट आउट द टाइमिंग्स अप टू 5 मिनट इट इज़ हैविंग ओवर हियर. इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में क्या होगा, ये आपको गाइड करेगा इनहेल और एक्सहेल करने पे, आपको हैप्टिक फीडबैक प्रोवाइड करेगा आपके हैंड में, तो आपको पता चल जाएगा कि अब इनहेल करना है, अब एक्सहेल करना है. तो ये भी काफ़ी अच्छा मोड है इसमें प्रेजेंट है. ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है. इसको अगर आप चाहते हैं ना तो अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं. आपका फ़ोन से नोटिफिकेशन बैंड पे आएगा, वाइब्रेट करेगा, फिर नोटिफिकेशन सेंड करेगा फ़ोन तो वाइब्रेट करेगा. तो ये काफ़ी सिंपल सा फीचर है, इसको सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर कहेंगे. तो ये भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है. देयर इज़ एन इवेंट मोड ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर बैंड. इन दिस पर्टिकुलर इवेंट मोड यू कैन सेट आउट द इवेंट्स और रिमाइंडर्स दैट यू वांट और आप बाद में आपको ये ऑटोमेटिकली रिमाइंड करता रहेगा कि आपने ये इवेंट इस टाइम पे सेट करा है तो आपको ये चीज़ करनी है. तो ये एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाएगा. इन दिस पर्टिकुलर बैंड यू विल गेट अ कैमरा मोड, अ डेडिकेटेड कैमरा मोड. इस कैमरा मोड के थ्रू आपके फ़ोन के साथ ये कनेक्शन बिल्ड कर लेता है एंड आफ्टर बिल्डिंग द कनेक्शन विथ योर फोन
इट विल एक्ट एज अ शटर बटन। तो आप अगर कैमरा खोल के रखते हो अपने फ़ोन का और यहाँ पे शटर बटन की तरह इसमें टक 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 क्लिक करोगे आप और फोटो आपके फ़ोन में खिंचाते जाएगा। तो वायरलेसली अगर देखा जाए तो शटर बटन की तरह वर्क करेगा आपके हाथ में। तो ये भी काफ़ी ठीक है फीचर, ये भी सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर है। आप इसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके मी बैंड 4 में भी यूज़ कर सकते हो। देयर इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल मोड ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर बैंड। दिस विल बी वे मोर यूजफुल फॉर गर्ल्स, लाइक दे कैन ट्रैक देयर पीरियड्स एंड ऑल। तो ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अ नैप मोड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर बैंड विच इज़ अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मोड, स्पेशली यूज्ड इन स्लीप मॉनिटरिंग। तो अगर दिन के टाइम में आप सो जाते हो कभी भी तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि यू आर स्लीपिंग इन बिटवीन डे टाइम एंड इट विल काउंट द हार्ट रेट थ्रू आउट योर स्लीप and will let you know about your nap. It is whether it is power nap or whether it is normal nap and any type of nap it is. Now let's talk about the common things that are present in both of the bands. Heart rate tracking is present in both of the bands and both of them are working fine in this particular thing. दोनों perfectly काम करते हैं। आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेगी मी बैंड 5 में क्योंकि उसका स्क्रीन थोड़ा बड़ा है, बट मी बैंड 4 में भी आपको एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करेगा। एक्यूरेट क्या मतलब कि दोनों सिमिलर टाइप के डेटा प्रोवाइड करेंगे आपको। वर्कआउट्स की बात करें तो आपको वर्कआउट सारे मिल जाते हैं मी बैंड 4 में भी, बस योगा और कुछ कुछ ऐसी एक्स्ट्रा मोड्स हैं जो इसमें नहीं डाले गए हैं, बट बाकी सारे मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और लाइक सही है यार, सिंपल सा मोड है, सब रहता है इसमें। नोटिफिकेशंस की बात करते हैं, दोनों ही बैंड में आपको नोटिफिकेशन वाले फीचर्स मिल जाते हैं। मी बैंड 5 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रहेगा क्योंकि मी बैंड 5 का स्क्रीन बड़ा है और ये ज़्यादा स्टोर कर सकता है नोटिफिकेशन मैसेज को। लाइक लंबे लंबे मैसेज भी ना इसमें अच्छे से स्टोर हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर आपको एग्जाम में चीटिंग करना है तो आप इसमें ज़्यादा लंबे मैसेज स्टोर करके ले जा सकते हो एग्जाम में। बोथ ऑफ द बैंड सपोर्ट्स कॉलिंग इन विच यू कैन कट द कॉल और यू कैन साइलेंट द कॉल थ्रू आउट योर बैंड ओनली। सो दोनों में दोनों फीचर वर्क करते हैं और दोनों सिमिलर ही फीचर है, मतलब कॉल काट भी सकते हो आप और साइलेंट भी कर सकते हो बैंड से ही। यू विल गेट वेदर इन बोथ ऑफ द बैंड्स वेयर यू कैन see the coming forecast of your weather. DND mode is present in both of the bands. Alarms are available in both of the bands. You will get a music player in both of the bands. Using the music player you can play, pause or move or previous to next tracks, which is quite common in this particular bands. It is having a stopwatch which is present in both of the bands and yeah, timer feature is present in both of the bands. तो ये सारे फीचर्स थे जो दोनों बैंड्स में सिमिलर हैं, टाइमर, स्टॉप वॉच, DND, अलार्म, हार्ट रेट और जितनी मैंने आपको काउंट कराया वर्कआउट से रिलेटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा एक्यूरेसी ऑफ दिस पर्टिकुलर 2 बैंड्स, क्योंकि टाइम टू टाइम जब कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना तो उसको इम्प्रूव करती है हार्डवेयर के थ्रू। तो दोनों में डेटा एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मेजर करके आपको मिलता है। टॉकिंग अबाउट द स्लीप मॉनिटरिंग, बोथ ऑफ द बैंड्स परफॉर्म वेरी वेल। दोनों एक्यूरेट और सिमिलर टाइप के डेटा प्रोवाइड करते हैं। मुझे कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि बाकियों ने वीडियो बनाया है इसमें उन लोग बता रहे हैं कि ये एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड नहीं करता, बट गाइज मेरे पास बहुत सारे फिटनेस ट्रैकर्स हैं, अमेज़फिट के, हुआवे के, ऑनर वानर सबके हैं, तो मैंने सब में टेस्ट करा तो सब एकदम सिमिलर ही टाइप के स्लीप मॉनिटरिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है कि 5-10% का फ़र्क रहता होगा, तो उतना नेग्लिजिबल फ़र्क होता है गाइज, तो आप कंसिडर कर सकते हो। और दोनों में लाइक सेम ही टाइप का स्लीप मॉनिटरिंग आपको देखने को मिलता है। नाउ सेकंड थिंग इज़ हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी दोनों सिमिलर ही टाइप को प्रोवाइड करेगा आपको, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। हो सकता है कि कभी आपको 85 इसमें देखने को मिल रहा है तो उसमें आपको 82 मिल जाए, या फिर हो सकता है 78 मिल जाए। तो वो डिपेंड भी करता है कि आपने कहाँ पे पहना है, लाइक आपने इस डिस्टेंस पे पहन रखा है या फिर यहाँ पे पहन रखा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये दोनों चीज़ें तो परफेक्टली फाइन है, इसमें सब कुछ सही काम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्कआउट। तो वर्कआउट में स्टेप्स मॉनिटरिंग हो गया या फिर कैलोरीज बर्न हो गया, दोनों एकदम सिमिलर है क्योंकि यार सेम ब्रांड का प्रोडक्ट है और सेम सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है इसमें, तो दोनों सिमिलर ही टाइप के आते हैं। कोई ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला, मैंने दोनों को टेस्ट करा, दोनों एकदम सिमिलर टाइप के ही मिले मुझे देखने को। तो हाँ सही है यार ये भी। बोथ ऑफ द बैंड्स आर वाटर रेजिस्टेंट एंड दे कैन गो इन डेप्थ अप टू 50 मीटर्स इन वाटर एंड कैन परफॉर्म वेल, और ख़राब नहीं होगा पानी के अंदर जाने पे। तो आप स्विम भी कर सकते हो इसको पहन के, और मतलब कि जहाँ पे पानी वाला वर्क है तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काफ़ी परफेक्टली फाइन है ये दोनों, वाटर प्रूफ है ये पूरे के पूरे। मतलब रेसिस्टेंस है तो ठीक है, प्रूफ भी कह ही सकते हो क्योंकि 50 मीटर डेप्थ तक कौन लेके जा रहा है यार इसको, अभी तो फिलहाल नहीं ना लेके जा रहे हो, तो ठीक है ये। टॉकिंग अबाउट द बैटरी बैकअप ऑफ बोथ द बैंड्स, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा मेरे को बताना कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है, दोनों में कौन सा बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि मी बैंड 5 जो है ना इसका बैटरी बैकअप मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है ये लास्ट 7 दिन तक कर पाएगा, ये लास्ट करेगा, क्योंकि मुझे 2 दिन हुए हैं और इसका 50% लाइक
3 दिन हो गए ना, 3 दिन हो गए हैं और 50% बैटरी इसका गिर चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये 6 से 7 से ज़्यादा दिन चलने वाला है ये। अब एक चीज़ है कि इसमें मैंने सारे मोड्स टर्न ऑन करके रखे हैं। ये 24 आवर्स मेरे फ़ोन से कनेक्टेड भी रहता है और 24 आवर्स कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी ऑन है। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये फिक्स हो जाए, या फिर अगर आप कुछ फीचर्स ऑन रखते हो, कुछ फीचर्स ऑफ रखते हो तो ये परफेक्टली काम कर जाए। बट ये बता पाना कि बैटरी बैकअप कितना देगा ये थोड़ा डिफिकल्ट है अभी मेरे लिए। इसको 1 मंथ तो यूज़ करना ही पड़ेगा तब बता पाऊँगा। नाउ कमिंग टू मी बैंड 4, उसका बैटरी बैकअप यार बहुत मस्त है। लिटरली सब जानते हैं उसका बैटरी बैकअप मस्त है। और अभी गीक डूइंग पे एक कंपटीशन चला था कि जिसका सबसे ज़्यादा बैटरी दिखता है उसको कुछ होगा, मतलब जो भी है कंपटीशन था, तो उसमें लोगों ने 40 दिन तक मी बैंड 4 का बैटरी को चलाया था मी बैंड 4 में। तो मेरे ओपिनियन में मी बैंड 4 का बैटरी बैकअप अभी के लिए इससे ज़्यादा बेटर है, मी बैंड 5 से ज़्यादा बेटर है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, द फाइनल वर्डिक्ट कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो अगर आपके पास मी बैंड 4 नहीं है, या फिर यू आर यूजिंग अ ओल्ड जनरेशन बैंड जैसे कि मी बैंड 3 यूज़ कर रहे हो आप, या फिर 2 यूज़ कर रहे हो आप, या फिर ऑनर बैंड 5 है आपके पास, तो आपको मी बैंड 5 खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपके डेली लाइफ को इम्प्रूव करेंगी। प्लस अगर आपके पास मी बैंड 4 पहले से है तो मेरे ओपिनियन में अगर ये सेम प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है इंडिया में जिस प्राइस पॉइंट पे ये मतलब कि चाइना में लॉन्च हुआ है, या फिर मी बैंड 4 वाले सेगमेंट में, तो मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि नॉन NFC वाला वर्जन जो है इसका अपग्रेड करना डेफिनेटली वर्थ इट नहीं होगा। क्योंकि जितने भी फीचर्स डाले गए हैं ना वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड फीचर्स हैं और उनको आप एक्सेस कर सकते हो अदर एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करके जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और मैंने वीडियो भी बना के रखे हैं बहुत सारे, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे जाके। सो गाइस दैट्स द प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। नाउ आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना है तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से खरीद लेना आप लोग जाके। सो गाइस दैट्स द प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। इफ लाइक दिस वीडियो गिव इट अ ह्यूज thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more cool videos like this. Catch you guys later on the next coming video. Till then, peace out guys and bye bye.